Welcome to We Learn. Understanding the Retail Customer, Session number 4. Topics to be covered: Introduction, Retail Activities, Retail Customer Behavior and the Role of Services in Retailing, Consumer Behavior Patterns, Factors Affecting Consumer Decision Making, Process, Stages of Consumer Decision Process, Level of Consumer Decision, Consumer Decision Rules, Influence of situational variables on shopping behavior, consumer images of retail stores. Introduction. Retailing, as we all would appreciate, is essentially the market concept of a customer-centric approach to developing and implementing a strategy. The growth of organized retailing in India across lifestyle, groceries, segments, etc., through various formats like convenience stores, hypermarkets, discount stores, supermarkets, and malls have created distinct consumer behavior segments that is posing a major challenge for Indian retailers like elsewhere in the world. The growth of ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की ग्रोथ इंडिया में हो रही है. जितने भी हमारी रिटेल सेगमेंट्स हैं जैसे कि लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी सेगमेंट्स एट्सेट्रा, थ्रू वेरियस फॉर्मेट्स लाइक कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स या डिस्काउंट स्टोर्स या सुपर मार्केट या फिर मॉल, उन्होंने एक डिस्टिंक्ट कंज्यूमर बिहेवियर सेगमेंट को क्रिएट कर दिया है जिससे कि इंडियन रिटेलर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है और जिससे कि बहुत मेजर चैलेंज हर एक रिटेलर को मिला है. The retailing concept covers 4 broad areas which precludes strategy. कस्टमर ओरिएंटेशन. रिटेलिंग कॉन्सेप्ट के 4 ब्रॉड एरियाज इंक्लूड है जैसे कि पहला है कस्टमर ओरिएंटेशन, वेयर द रिटेलर स्टडीज कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग ट्रेंड एंड फुलफिल दोज नीड्स. रिटेलर स्टडी करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को और उनकी बाइंग ट्रेंड्स को और उनकी नीड्स को फुलफिल करता है. गोल ओरिएंटेशन. The retailer has clear goals and targets to achieve as per a given formulated strategy. Retailer का एक clear goal और targets होता है achieve करने के लिए as per a given formulated strategy. Value driven approach. The retailer makes a careful study of the value of the goods to be sold and its perception in the consumer mind. Price and quality plays an important role here. रिटेलर एक केयरफुल स्टडी करता है कि कौन कौन से गुड्स बेचने हैं और क्या परसेप्शन है कंज्यूमर की माइंड के अंदर. यहाँ पे प्राइस और क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. एवरी एक्टिविटी विद इन द रिटेल स्पेस इज अलाइन्ड टू अ गोल टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी in serving the customer and deliver value. हर एक एक्टिविटी जो रिटेल स्पेस में होती है वो एक गोल अचीव करने के लिए होती है और वो क्या गोल है? मैक्सिमाइज करना एफिशिएंसी को, सर्विसेज की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना और कस्टमर को एक वैल्यू डिलीवर करना. रिटेल एक्टिविटीज़. In order to fulfill the consumer needs, retailers undertake various business activities which add value to the offering in their store. Consumer की needs को fulfill करने के लिए retailers बहुत सारी business activities करता है जिससे कि एक value add up होती है. In this diagram, we can easily see that activities of retailers are arranging assortments,
breaking bulk, holding stock and providing services. इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ रिटेलर्स, क्या क्या रिटेलर्स एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर सके और एक वैल्यू प्रोवाइड करे रिटेलर्स कस्टमर को. एक्टिविटीज़ इंक्लूड है ब्रेकिंग बल्क, होल्डिंग स्टॉक, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड अरेंजिंग असॉर्टमेंट. Breaking bulk is believed to derive from the French word retaillerie, meaning to cut a piece off. Breaking bulk एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है टू कट अ पीस ऑफ. पीसेस में कट करना. To reduce transportation costs, manufacturers and wholesalers typically ship large cartons of the merchandise, which are then tailored by the retailers into smaller quantities to meet individual consumption needs. ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स लार्ज बल्क में देते हैं अपने गुड्स को. तो इसका मतलब रिटेलर के पास भी लार्ज बल्क में आता है, बल्क में प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन उन बल्क को बाद में रिटेलर्स कट ऑफ कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, ताकि वो इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सकें. ऑब्वियस है, अगर आप लेना चाहोगे कोई भी प्रोडक्ट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग नीड्स होती है. उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, उतने में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है रिटेलर. होल्डिंग स्टॉक. Retailers also offer the service of holding stock for manufacturer. Retailers manufacturer को एक holding stock की भी सर्विस प्रोवाइड करता है. They maintain an inventory that allows for instant availability of the product to the consumer. Additional services. Providing product guarantees, after-sales services and handling customer grievances are some of the services that add value to the product at the retail point. और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो एक रिटेलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी या हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवियंसेस. रिटेलर्स फुलफिल ऑर्डर्स, promptly process, deliver and install products. रिटेलर फुलफिल करता है ऑर्डर्स को, प्रोसेस करता है, डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को. Retail customer behavior and role of services in retailing. So stores remain popular because of the basic reason. Stores popular हो जाते हैं because कुछ reason की वजह से. The need to touch and feel the product prior to buying. हमेशा कस्टमर चाहेगा कि पहले कोई प्रोडक्ट वो खरीदेगा, उससे पहले उस प्रोडक्ट को टच या फील करे ताकि वो देख सके कि ये प्रोडक्ट है क्या. तो सेकंड है इट अलाउस social interaction and the opportunity to compare brands at one place. रिटेलर अलाउ करता है सोशल इंट्रैक्शन को और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो कंपेयर कर सके एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से एक ही जगह पे. इट instigates impulse buying by the look and physical feel of the product such as chocolates, snack foods and magazines. कस्टमर बाय करने से पहले उसको देख सकता है, प्रोडक्ट को देख सकता है और फिज़िकली फील कर सकता है, जैसे कि चॉकलेट्स, मैगज़ीन्स या स्नैक फूड्स हो गए. कोई भी मैगज़ीन लेने से पहले आप पहले देखना चाहोगे कि ये मैगज़ीन है कैसी, क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर है. या फिर चॉकलेट्स या फूड स्नैक्स लेने से पहले आप पहले देखना चाहोगे कि
ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, पढ़ना भी चाहोगे, उसको फिज़िकली फील करना चाहोगे, तो रिटेलर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स ऑल्सो लुक फॉर एम्बियंस एंड कन्वीनियंस इन शॉपिंग। कस्टमर कन्वीनियंस शॉपिंग भी करना चाहता है, तो रिटेलर एक अपॉर्चुनिटी देता है कस्टमर को कि वो कन्वीनियंटली शॉपिंग कर सके। Consumer shopping behavior can be understood analyzing factors such as demographic, psychological, or the lifestyle of the consumer. Consumer shopping behavior अंडरस्टैंड कर सकते हैं 3 फैक्टर्स को एनालाइज करके। पहला है डेमोग्राफिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल और द लाइफस्टाइल, और तीसरा है लाइफस्टाइल ऑफ द कंज्यूमर। Retailers are required to have better understanding of the consumer benefit, their perceptions and attitudes, and how they influence the development of successful retail marketing strategies. Retailers को चाहिए एक better understanding of consumer benefit, जो consumers perception, अलग अलग consumers के अलग अलग perceptions होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, तो एक रिटेलर को चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर्स के परसेप्शन को और एटीट्यूड को समझे। इफेक्टिव रिटेलिंग requires an appreciation of the buying behavior of the consumers. Retailers must understand their consumers better so that they can both respond to and anticipate their needs proactively. अगर एक रिटेलर अपने कंज्यूमर को अच्छी तरह से समझेगा, उसकी नीड्स को समझेगा, परसेप्शन या एटीट्यूड को समझेगा, तो पहले ही उसकी डिमांड को फुलफिल करने में की कोशिश करेगा। रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर एंड द रोल ऑफ सर्विसेज इन रिटेलिंग। Some of the major criteria for the right approach to the consumer need are creating the right environment, listening to the customers, providing rewards to frequent buyers, realizing the lifetime value of a customer, and ensuring loyalty. कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं कस्टमर की नीड को राइटली अप्रोच करने का। उनमें से है क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट, एक सही एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, लिसनिंग टू द कस्टमर्स, अपने कस्टमर की सुनना, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स टू फ्रीक्वेंट बायर्स को रिवॉर्ड्स देना, रिलीजिंग द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर एंड इंश्योरिंग लॉयल्टी। Consumer behavior patterns. Consumer behavior follows no fixed pattern and is therefore very difficult to map. Consumer behavior का कोई fixed pattern नहीं होता, इसीलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनको mapping out करना, समझना। It is important to know what and from where the shoppers shop and the reason that prompt their shopping behavior. Consumers buy products. Successful products are those that provide the tangible or intangible features necessary to realize the consumer's expectations of the benefits. Successful product वही है जो कि provide करे एक tangible या intangible feature जो कि कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से मैच करें। रिटेल कंज्यूमर, we have divided into what consumers buy, how much consumers buy, which consumer buy, why consumer buy, and where consumer buy. Means a retail consumer has to decide, has to observe that from where the consumer is buying, how much he is or she is buying, which consumer is buying, from where
why the consumer is buying a particular product, and so on. In this, we have certain points under each category. For example, what consumer buy? Product tangible or product durability. How much consumer buy? Consumer population, consumer requirement, and consumer potential. Which consumer buy? Depends upon the individual center and household centers. Why consumer buy? Depends upon the psychological factor, personal factor, and social factors. Where consumer buy? Depends upon the retail store, consumer's home, consumer's workplace. ये आपको एक बाइंग बिहेवियर बता रखा है रिटेल कंज्यूमर का कि हमें रिटेलर को देखना होता है कि कहाँ से कंज्यूमर बाय कर रहा है, क्यों कंज्यूमर बाय कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कौन कौन से कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, कितना बाय करते हैं, कितना खरीदते हैं और क्या कंज्यूमर बाय करता है। हर एक कैटेगरी के अंदर कुछ पॉइंट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि व्हाट कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर क्या बाय करता है, क्या वो प्रोडक्ट टेंजिबिलिटी पे ध्यान देता है या प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी पे। हाउ मच कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर कितना बाय करता है, ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कंज्यूमर की कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की और क्या क्या पोटेंशियल है कंज्यूमर का बाय करने में। विच कंज्यूमर बाय, कौन कौन से ऐसे कंज्यूमर हैं जो बाय करते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल सेंटर्स या हाउस होल्ड सेंटर। वाई कंज्यूमर बाय, क्यों कंज्यूमर बाय कर रहे हैं, डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, पर्सनल फैक्टर कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, एंड सोशल फैक्टर्स। वेयर कंज्यूमर बाय, कहाँ से कंज्यूमर बाय करता है, रिटेल स्टोर से या कंज्यूमर होम या कंज्यूमर वर्कप्लेस। कंज्यूमर बाइंग, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स, वाई पीपल बाय, पीपल क्यों बाय करते हैं। वह 3 चीज़ें बताई है इसमें, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड करता है कंज्यूमर के कंज्यूमर क्या का लाइफस्टाइल को इंक्लूड करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स के क्या सोसाइटी किस कल्चर में रहता है वो, इट ऑल्सो इंक्लूड इन द सोशल फैक्टर। एंड पर्सनल फैक्टर, क्या उसकी एज है, क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है उसका, ये सारा पर्सनल फैक्टर हो गया। पर्सनल फैक्टर, रोल प्लेइंग, शॉपिंग एक्टिविटीज आर लर्नड बिहेवियर एंड आर एक्सपेक्टेड और accepted as part of one's position or role. For example, if your parents have been shopping at a certain store, then you would prefer to shop at the same store. एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, अगर आपके पेरेंट एक पर्टिकुलर स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो आप भी प्रेफर करोगे कि हम उसी स्टोर से शॉप करें। Diversion, it can be a diversion for the consumer from the daily routine and is a form of recreation. A visit to a mall or shopping center is a diversion shopping as it is not your usual shopping area. डाइवर्जन होता है कि जहाँ पर हम डेली रूटीन में शॉपिंग करते हैं उससे थोड़ा सा हटके इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, कि हमने एक कुछ चीज़ रिक्रिएट किया है। जैसे कि मॉल में विज़िट करना या शॉपिंग सेंटर में विज़िट करना, ये एक डाइवर्जन शॉपिंग होगी क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आप नहीं जाते हैं शॉपिंग एरिया में। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, शॉपिंग में बी मोटिवेटेड not by the expected utilities of consumption but the utilities of their buying process itself
Thus, one's emotional state or mood may explain why or when someone shops. शॉपिंग सिर्फ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन से ही मोटिवेट नहीं होती, बल्कि अपने बाइंग प्रोसेस की यूटिलिटी से भी मोटिवेट होती है। इसका मतलब कि किसी का मूड या इमोशनल स्टेट देख के हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों और कब कोई शॉपिंग करेगा। लर्निंग ऑफ न्यू ट्रेंड्स। शॉपिंग provides an individual information about the latest trends, movement and product symbols reflecting attitude and lifestyle. When you go window shopping, you learn new trends and styles. शॉपिंग प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड में, और प्रोडक्ट सिंबल्स रिफ्लेक्ट करते हैं एटीट्यूड और लाइफस्टाइल। जैसे कि हम कहीं भी किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट सिंबल देख लेते हैं तो हमारा एक एटीट्यूड एक ब्रांड सिंबल के साथ या एक प्रोडक्ट सिंबल के साथ बन जाता है। व्हेन यू गो, जब आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं तब आपको नए नए ट्रेंड्स और नए नए स्टाइल्स का पता चलता है। फिजिकल एक्टिविटी। It involves a considerable amount of exercise too. When you go for a walk, you would also complete your shopping. ये एक amount of exercise में भी involve होता है, क्योंकि जब आप walk करते हैं, अपनी complete करते हैं shopping को, तो it's a kind of exercise. Sensory stimulation provides sensory benefits such as touch and feel of merchandise, listening to the sound, music, and smelling scents, which you move around a store or a shop. When you move around a store or a shop, जब आप घूमते हैं स्टोर के अंदर तो आपको बहुत सारे सेंसेस का अनुभव होता है और एक सेंसरी बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट को उठाएंगे तो एक टच करेंगे या फील करेंगे तो उसका एक सेंसरी बेनिफिट होगा। आप साउंड सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं एक स्टोर के अंदर, तो वो भी आपकी एक सेंस को बढ़ा रहा है। प्लस जब आप खुशबू सूंघते हैं तो वो भी आपकी सेंसरी बेनिफिट को प्रोवाइड कर रहा है। सोशल फैक्टर्स। सोशल एक्सपीरियंसेस आउटसाइड होम। इट कैन हेल्प इन सीकिंग न्यू acquaintances, encounter with friends or just watching people around. जब आप बाहर जाते हैं घर से तो बहुत सारे फ्रेंड्स या फिर बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिससे आप मिलते हैं। Communication with others with similar interests. It also provides opportunity for the interaction with other consumers or sales people to get to know more information. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप औरों के साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप अपने पास गैदर करें। Peer group attraction. Certain stores may also provide a meeting place where members of peer group may gather. For instance, a visit to the local mall or shopping center to meet your friend or peer group. एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जब आप मान लीजिए पीयर ग्रुप से मिलने के लिए एक शॉपिंग सेंटर या लोकल मॉल में जाते हैं तो एक तरह से ये प्रोवाइड कर रहे हो अपॉर्चुनिटी कि आप अपने पीयर ग्रुप्स या मेंबर्स से मिल सकें। स्टेटस एंड अथॉरिटी। शॉपिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अटेन स्टेटस एंड पावर बाय बीइंग वेटेड। ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, शॉपिंग प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी कि हम स्टेटस को अटेन कर सकें। प्लेजर बार्गेनिंग। शॉपिंग may offer the enjoyment of gaining a lower price through bargaining or comparison shopping or by visiting special sales offering discount and rebate. जब आप शॉपिंग करते हैं
तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में, जिससे आपको नॉलेज होती है प्राइजेस की और आप बार्गेन करा सकते हैं अच्छी तरह से। आप स्पेशल सेल्स ऑफरिंग डिस्काउंट्स या रिबेट शॉप ऐसे शॉप्स पे भी जा सकते हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं स्पेशल डिस्काउंट्स और रिबेट्स। फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करता है कंज्यूमर के डिसीज़न को? पहला है डेमोग्राफिक, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल, third is environmental, and fourth is lifestyle. Demographic factors. Demographic factors are unique to a person. All stores have focused themselves on respective segments based on factors such as age, income, family size, gender, occupation, etc. Demographic factors include करता है age, income, जेंडर या ऑक्यूपेशन को। डेमोग्राफिक फैक्टर्स यूनिक होता है हर एक पर्सन में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स refers to the inner aspect of an individual. इनर आस्पेक्ट को रेफर करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। An understanding of the consumer psychology guides the retailer's segmentation strategy. Consumers respond differently towards the same retail marketing due to their respective motives, personality, level of involvement and attitude. ये साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड करता है मोटिव को, पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, ये कितना आप इन्वॉल्व हैं, मतलब लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट को। ये हर एक कंज्यूमर में अलग अलग होते हैं। Environmental factors are both psychological and social factors. This includes the physical object, spatial relationship, and social factors. The environmental factors influence the consumer's wants, learning, motives, etc., which in turn influence affective and cognitive responses and therefore shopping behavior of the individual. Environmental factors physical and social factors को भी include करता है। ये include करता है physical objects, special relationship या social factors को। Environmental factors influence करता है consumers की want को, उनके motives और learning को, जिससे कि इन्फ्लुएंस होते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके अंदर एक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है और शॉपिंग बिहेवियर देखा जा सकता है। लाइफस्टाइल refers to an individual's way, style of living as determined by his or her activities, interests and opinions. Lifestyle is considered to be highly correlated with consumers' values and personality traits. Lifestyle highly correlate करता है कंज्यूमर की वैल्यू से और पर्सनालिटी ट्रेट से। ये डिटरमाइन करता है कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ को, इंटरेस्ट को और ओपिनियन को। स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की। सबसे पहले हमें नीड की रिकग्नाइजेशन होती है। क्या नीड है, किस चीज़ की नीड है, पहले हमें वो पता चलता है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उस नीड को पूरा करने के लिए। जिसकी एग्जांपल लेते हैं, हमें नीड है कि हमें एक कार चाहिए ताकि हम दूर तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले सकें। मतलब दूर जाने के लिए हमें एक अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल सके। उसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि हमें मार्केट में कौन कौन सी कार्स मिल सकती हैं।
फिर हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि हमें मारुति की कार लेनी है या हुंडई की कार लेनी है या फिर निसान की कार लेनी है। परचेज डिसीज़न, उसके बाद इवैल्यूएशन करने के बाद हम परचेज डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सी कार लेनी है। परचेज इवैल्यूएशन, परचेज डिसीज़न ले लिया, उसके बाद हम परचेज को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद फिर से एक नीड रिकग्नाइज होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन, level of consumer decision have been divided into 4 parts. First is extensive decision making, second is limited decision making, third is routine response, and fourth is impulse decision. कंज्यूमर डिसीजन को हमने 4 लेवल में बांटा है। पहला है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, दूसरा है लिमिटिंग डिसीजन मेकिंग, तीसरा है रूटीन रिस्पॉन्स और फोर्थ है इम्पल्स डिसीजन। Extensive decision making or complex high involvement. This usually happens for unfamiliar, expensive, and infrequently bought products. Example include purchase decision for cars, homes, computers, and education. For such transactions, an individual has to spend a lot of time seeking information. यूजुअली इसमें बहुत एक्सपेंसिव या अनफेमिलियर या इनफ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स जिनको हम ज़्यादा जल्दी नहीं खरीदते हैं वो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कार, होम, कंप्यूटर या एजुकेशन। ये सब ट्रांजैक्शन, इन सब ट्रांजैक्शन में एक इंडिविजुअल को बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। Then after limited decision making, it happens when an individual purchases a product occasionally and is required to look for a different brand or retailer for a product one is used to because of non-availability or non-performance. ये तब होता है जब occasionally कोई प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को चाहिए होता है और वो कंज्यूमर डिफरेंट ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन लेता है। रूटीन रिस्पॉन्स और प्रोग्राम बिहेवियर, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लो इन्वॉल्वमेंट, फ्रीक्वेंटली परचेज एंड जनरली लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें इंक्लूड होते हैं जो वो प्रोडक्ट्स जिनकी कॉस्ट कम है या फिर फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स बाय करते हैं। दे रिक्वायर लिटिल सर्च एंड डिसीजन एफर्ट एंड आर परचेज ऑटोमेटिकली। और ऐसे प्रोडक्ट्स में डिसीजन एफर्ट कम लगता है और ऑटोमेटिकली खरीदा जाता है। इम्पल्स बिहेवियर, दिस रिलेट्स टू दोज परचेजेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्शियस प्लानिंग। इम्पल्स बिहेवियर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कंज्यूमर पहले से प्लान करके नहीं रखता खरीदने के लिए। एग्जाम्पल्स आर सॉफ्ट ड्रिंक्स विच अकर ड्यू टू साइटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द प्रोडक्ट एट द आउटलेट। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सॉफ्ट ड्रिंक का, कस्टमर ने कहीं पे सॉफ्ट ड्रिंक देखी तो उसने ले ली, या फिर एडवर्टाइजमेंट कहीं पे देखा तो उसने ले लिया। कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती इस प्रोडक्ट को खरीदने में। Compensatory decision rule. On the basis of compensatory decision rule, a shopper evaluates score or brand after scores in a considerable set. Example, on the basis of research study, while selecting a restaurant, a prospective consumer will select Haldiram in comparison to McDonald's and Bikaner on several count of feature desire. एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च स्टडी, जब हम सिलेक्ट करते हैं एक रेस्टोरेंट को
तो एक कंज्यूमर सिलेक्ट करता है हल्दीराम इन कंपैरिजन ऑफ मैकडोनल्ड्स और बीकानेर ऑन सेवरल काउंट्स ऑफ फीचर डिज़ायर। तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया कि जब एक कंज्यूमर हल्दीराम को सिलेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू इन कंपैरिजन ऑफ मैकडोनल्ड एंड बीकानेर, वो उनको चॉइस नहीं कर रहा बल्कि हल्दीराम को चॉइस कर रहा है। तो वो कंज्यूमर क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है स्कोर को या ब्रांड को। नॉन कॉम्पेंसेटरी डिसीजन रूल, दिस रूल डज नॉट अलाउ कंज्यूमर to balance positive assessment of stores on one dimension against the negative evaluation on the other dimension. Talking the previous example, in case of restaurant selection, negative rating on atmosphere would not be offset by positive assessment of its merchandise mix. That is to say that a consumer choice of restaurant, if present on variety of cuisines, would have dropped McDonald's out of the reckoning in this form of decision process. इस केस में हम भी वही वाला प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लेंगे। पहले क्या था, हल्दीराम को सिलेक्ट किया था किसी ग्रेड पे, किसी रेट पे एज कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। बट जब हम नॉन कंपेंसेटरी डिसीजन रूल की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम नेगेटिव रेटिंग नहीं सेट करेंगे हल्दीराम की। मतलब अगर हम नेगेटिव रेटिंग ऑन एटमॉस्फेयर वुड नॉट बी ऑफसेट बाय पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ इट्स मर्केंडाइज मिक्स। मतलब नेगेटिव रेटिंग ऑन एटमॉस्फेयर, हल्दीराम की एटमॉस्फेयर की नेगेटिव रेटिंग ऑफसेट नहीं हो पाएगी बाय द पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ इट्स मर्केंडाइज मिक्स। इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर, these can be classified into 4 distinct dimensions of situational influences. First is physical setting, social setting, temporal setting and task definition. इसको हमने 4 भागों में dimensions में डिवाइड किया है। पहला है physical setting, दूसरा है social setting, थर्ड है temporal setting and फोर्थ है task definition. Physical setting covers geographical location of the retail outlet but can also mean the environment in which the consumer resides to access the shopping center. Second is social setting. The social setting describes the presence or absence together with the social roles, role attributes and opportunity of interaction. Physical setting cover करती है जोग्राफिकल लोकेशन किसी रिटेल आउटलेट की, और सोशल सेटिंग डिस्क्राइब करती है प्रेजेंस और एब्सेंस को टुगेदर विद द सोशल रोल्स, रोल एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन. Temporal aspects, this refers to the constraints such as time available for shopping and factors such as seasonal variables, which is particularly visible in the context of both fashion shopping and perishable purchases such as milk purchase normally at daytime and fashion apparel at the later part of the day. Temporal aspect refer करता है उन constraints को जैसे कि टाइम अवेलेबल फॉर शॉपिंग के कितना टाइम अवेलेबल है शॉपिंग के लिए. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम मिल्क परचेज़ करते हैं डे टाइम में, और जितने और फैशन अपैरल्स हैं उनको हम रेस्ट ऑफ द पीरियड मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम में परचेज़ करते हैं. To match with the image of the retail store, it is essential to identify and aggregate the relevant consumer attitude to the merchandise displayed. Salesforce deployed location of store and the price level of goods to be purchased. Consumer images of retail stores. The dimensions which shape relevant consumer attitude for a retail stores are वो dimension जो shape करते हैं
रिलेवेंट कंज्यूमर एटीट्यूड को एक रिटेल स्टोर के लिए वो है लोकेशनल कन्वीनियंस विच कवर्स द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला है लोकेशनल कन्वीनियंस, जो जिसमें कि ये 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है एक्सेस रूट्स, सेकंड इज ट्रैफिक बैरियर, थर्ड इज ट्रैवल टाइम एंड फोर्थ इज पार्किंग अवेलेबिलिटी। सेकंड है मर्केंडाइज सुटेबिलिटी, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि नंबर ऑफ ब्रांड स्टॉक, क्वालिटी ऑफ लाइन ऑफ मर्केंडाइज, breadth of assortment, depth of assortment, number of outstanding department in the store. Third is price points. Price points में कुछ points आते हैं जैसे कि price of the item, किसी item का price क्या है, price of the same item in the other store, उसी item का दूसरे store में price कितना है, trading stamp और coupons and discounts के कितना हमें coupon discount coupons मिल रहे हैं। Fourth is sales force and service. Quote say of sales force, reliability of advertising and match with attributes, billing procedures, adequacy of credit arrangements, delivery promptness and care, eating facilities in store. ये सारे services sales force and services में include होते हैं। Congeniality, development, store layout, store decor, merchandise display, class of customers visiting store, store traffic and congestion। ये सारे points congeniality में include होंगे, जैसे कि क्या store का layout है, उसका decor क्या है, product display कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, या फिर क्या क्लास है कस्टमर की जो स्टोर में विजिट कर रहे हैं। सिक्स्थ है पोस्ट ट्रांजैक्शन सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन विद गुड्स इन यूज़, जो हमने गुड्स यूज़ में लाए हैं उनसे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन विद रिटर्न एंड एडजस्टमेंट्स, सेटिस्फेक्शन विद प्राइस पेड एंड सेटिस्फेक्शन विद एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्टोर। बहुत सारे सेटिस्फेक्शंस हर एक जगह पे इंक्लूड होते हैं कि फर्स्ट है जैसे कि कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी गुड्स को यूज़ करने में, सेटिस्फेक्शन विद प्राइस पेड, जो हमने प्राइस पे किया है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्टोर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये सारा पोस्ट ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होता है। डू इट योरसेल्फ, in what ways the knowledge of consumer behavior is essential for the success of retail strategies. Second, what are the factors that influence consumer behavior in retail banking? Thank you. Happy learning, relearning.